Assalamualaikum students, how are you? I hope all of you are fine and you are enjoying your lectures. Today we will complete our unit number 4. We have done its translation and synonyms, and today we will do its exercise. Are you ready for that? Let's begin it. Glossary. Glossary means the synonyms of the difficult words, the same meaning, words meanings. Perilous, dangerous, venture, undertake, furiously, angrily, refuge, place of safety, instantly, immediately, constant, regular, detect, to find out, ripe, mature, reveal, show. Now here is comprehension, and the question number 1 is what happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq. क्या हुआ जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में पूछा? She anha put a counter question that infuriated अबू जहल. उन्होंने सवाल के जवाब में सवाल कर दिया जिससे अबू जहल आग बगूला हो गया. He slapped हज़रत अस्मा's face so hard. उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा that her earring fell off, कि उनकी बाली गिर गई. But she remained steadfast, लेकिन वो डटी रही and did not reveal the secret, और राज ना बताया. Now question number 2, why was हज़रत अबू कहाफ़ा worried? अबू कहाफ़ा परेशान क्यों थे? हज़रत अबू कहाफ़ा, her grandfather was a disbeliever at that time. उनके दादा हज़रत अबू कहाफ़ा उस वक्त काफिर थे. He was very old and had become blind. वो बहुत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे. He thought that Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu had taken all the wealth, leaving her and children empty-handed and helpless. उन्होंने ये सोचा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अस्मा को और बच्चों को बेयारो मददगार छोड़कर और खाली हाथ छोड़कर तमाम दौलत लेके. Question number 3, how did Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा console her grandfather? उन्होंने अपने दादा जान की तसल्ली कैसे करवाई? She रज़ियल्लाहु अन्हा gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उनको उस जगह पर रख दिया जहाँ पे उनके वालिद साहब अपना पैसा और ज़ेवरात रखा करते थे. She रज़ियल्लाहु अन्हा covered it with a piece of cloth. उन्होंने कपड़े से उसको ढांप दिया. She asked her grandfather to touch the cloth. उन्होंने अपने दादा से कपड़े को हाथ लगाने के लिए कहा and he thought that, और उन्होंने सोचा कि it was full of gold and jewels, कि वह सोने और ज़ेवरात से भरा हुआ था. His concern was alleviated and उनका जो परेशानी थी वो कम हो गया. And he felt relieved to know that, और ये जानकर उनको सुकून मिल गया that कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ had left all his wealth at home, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी तमाम दौलत. Question number 4, who was Hazrat Abdullah bin Zubair? Hazrat Abdullah bin Zubair कौन थे? Hazrat Abdullah bin Zubair was a son of Hazrat Asma. Hazrat Abdullah bin Zubair रज़ियल्लाहु अन्हु Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे. Question number 5, which incident in the story showed Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा love and respect for the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो कौन सा वाक़या है जो हज़रत अस्मा की मोहब्बत और रिस्पेक्ट को ज़ाहिर करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? At the time of माइग्रेशन के मौके पर when her duty was to deliver food to, जब उनका फ़र्ज़ था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद साहब को खुराक पहुँचाएँ. She prepared food for this journey. उन्होंने इस सफ़र के लिए खुराक तैयार की. She रज़ियल्लाहु अन्हा tied the food on the camel back with her own belt. तो उन्होंने अपने ही कमरबंद से उस खुराक को ऊँट की पुश्त पर बांध दिया. as nothing else could be found, क्योंकि कुछ भी नहीं था वहाँ पर. She put her life in danger for the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़तरे में डाल दिया. and didn't care of enemy, और दुश्मन की परवाह ना की. This incident shows her love for the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी. Question number 6, which incident in the story tells about the generosity of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा? वो कौन सा वाक़या है इस कहानी में जो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत को ज़ाहिर करता है?
She रज़ियल्लाहु अन्हा was so generous, वो इतनी सखी थी that she sold the garden inherited after the death of her sister हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो इतनी सखी थी कि वो उन्हें जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद एक बाग विरसे में मिला था, वो उन्होंने बेच दिया। She gave away all the money to the poor and the needy. उन्होंने वो तमाम पैसा गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. कभी भी कोई भी शख्स उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं गया। Here is something new that you will learn now, that is cataphoric reference. Cataphoric reference क्या होता है? बहुत आसान है अगर थोड़ा सा concentrate आप करें। It means इसका मतलब है that a word, एक लफ्ज़ in a text, आप जो कोई लाइन पढ़ रहे हैं या पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या 2 लाइन्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट, इट रेफर्स टू another later in the text. उस लफ्ज़ को ज़ाहिर करता है, उस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बाद में इस्तेमाल होता है। एंड यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड। तो पिछले लफ्ज़ की मज़ीद वजाहत के लिए आपको उस लफ्ज़ को देखना होता है। इट कैन बी कंपेयर्ड विद एनाफोरिक रेफरेंस। इसको एनाफोरिक रेफरेंस के साथ कंपेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। अब यहाँ पर हिज कंपेनियन जो है, अगर हम बात यहाँ तक करें हिज कंपेनियन माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, तो बात मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हमें पता न चल जाए कि वो कंपेनियन है कौन। तो उसके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो नाम है वो ज़रूर यहाँ पर मेंशन होगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो कैटाफोरिक रेफरेंस है। इसको जानने के लिए हिज कंपेनियन की एक्सप्लेनेशन है ये हज़रत अबू बकर का जो नाम यहाँ पे यूज़ किया गया है। And there is another reference, and that is anaphoric reference. It means a word refers back to another word for its meaning, जो अपने मतलब के लिए पिछले लफ्ज़ की तरफ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हज़रत उस्मा वॉज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत उस्मा उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने इब्तदाई दौर में ही इस्लाम कबूल कर लिया। शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अब यहाँ पे जो शी का वर्ड है और हज़रत उस्मा है, ये आपस में लिंक्ड है। एनाफोरिक रेफरेंस का मतलब क्या होगा कि शी जो है वो दोबारा हज़रत उस्मा की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एनाफोरिक रेफरेंस होगा। सो टेल वेदर द रेफरेंस गिवन इन दीज सेंटेंसेस इज एनाफोरिक और कैटाफोरिक। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, आपने बस ये फाइंड आउट करना है कि वो एनाफोरिक है या कैटाफोरिक है। अबू जहल द चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, तो ये एनाफोरिक है। हर ग्रैंडफादर अबू कुहाफा, तो हर ग्रैंडफादर के साथ अबू कुहाफा जुड़ा हुआ, ये कैटाफोरिक है। व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड, एनाफोरिक है। Before she finished the work, Neelam checked the mistake once again. यहाँ पर कैटाफोरिक रेफरेंस है। अनीस threw the stone, he broke the window. अनीस और ही के साथ एनाफोरिक रेफरेंस है। When she entered the room, Zeba was surprised to see so many guests. अब she और Zeba कैटाफोरिक रेफरेंस है। The city of gardens, Lahore, is also famous for its historical places. यहाँ पर भी कैटाफोरिक रेफरेंस ही है। Now vocabulary. Choose the correct meaning of the underlined words. Now this question is of 5 marks. ये 5 marks से synonym आएंगे आपके पेपर में, and you have to fill up the bubble sheet. आपने यहाँ पे कोई सर्कल नहीं करना होता, आपने बबल शीट को फिल करना होता है। It was so delicate situation. Delicate, difficult, easy, sensitive, fragile. Sensitive है, serious है। Abu Jahl began knocking at the door violently, politely, slowly, forcefully, angrily. Forcefully था, बहुत ज़ोर से उसने दी थी दस्तक। She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Pleased, helped, enraged, annoyingly. Enraged है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। She remained steadfast and did not reveal the secret. Steadfast का मतलब क्या होगा? Patient, firm and resolute, ready to face, prepared for the worst. तो उसका था कि वो पुरज़म रही और अपनी बात पर डटी रही। Firm and resolute. Now
B portion is consult a dictionary to find the meaning of the following words, phrases and use them in sentences. So here are some words and phrases. Mad with anger beside someone with rag. बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना. He was mad with anger after hearing about his failure. वो अपनी नाकामी को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया. Fit of fury, extreme anger, शदीद गुस्सा. अबू जहल slapped हज़रत अस्मा in a fit of fury. अबू जहल ने शदीद गुस्से की हालत में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को थप्पड़ मार दिया. Reveal the secret, disclose the secret. हज़रत अस्मा did not reveal the secret. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने राज ज़ाहिर ना किया. Resolute firm. We must have resolute faith on Allah Almighty. हमें लाजमी अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए. Alleviate, lessen, reduce. This woman hopes these things will alleviate her headache. इन खातून को उम्मीद है कि ये चीज़ें उनके सरदर्द को कम कर देंगी. Companion, friend, दोस्त, साथी. द क्लोजेस्ट कंपेनियन ऑफ मी इज़ सारा. मेरी सबसे करीबी साथी सारा है. रेफ्यूज, गेट शेल्टर. आवर माउंटेन कॉटेज इज़ अ रेफ्यूज फ्रॉम द इल्स ऑफ द सिटी. हमारा पहाड़ के ऊपर जो कॉटेज है, छोटी सी जो झोंपड़ी है, वो शहर की बुराइयों से हमारे लिए एक पनाह है. गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट. ही गिव अवे ऑल हिज मनी टू द पुअर. उसने अपने तमाम दौलत गरीबों में बांट दी. डिटर्मिन्ड, रिजॉल्व्ड. कायद आज़म वॉज डिटर्मिन टू गेट पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम्स. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए पाकिस्तान हासिल करने के लिए पुरअज़्म थे. माइग्रेशन, गो फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना. माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना वॉज फुल ऑफ डेंजर्स. मक्का से मदीना की तरफ हिजरत बहुत ज़्यादा ख़तरों से भरी हुई थी. नाउ ग्रामर पोर्शन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी खूबी, किसी काम या हालत को कहते हैं. कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स. अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनको हम देख नहीं सकते. उसको हम यानी वो जगह नहीं घेरते, दिखाई नहीं देते और हम उन्हें हाथ नहीं लगा सकते. हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं. For example, she faced every calamity of life with patience and valor. अब patience and valor दिखाई नहीं देते, बट ये क्वालिटीज़ हैं जो किसी में भी होती हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हर उस नाम को कहते हैं, उस नाउन को कहते हैं that we cannot touch, we cannot see, we can just feel them. Underline abstract nouns in paragraph number 4. Here are some abstract nouns: migration, question, statement, response, fit of fury, wisdom, secret, courage, clue, wrath. ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो पैराग्राफ नंबर 4 में यूज़ किए गए हैं. बी पोर्शन इज फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स. यूज दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. courageous, courage. The line is often used as symbol of courage. शेर को बहादुरी के सिंबल के तौर पर, अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. एम्पटी, एम्पटीनेस, खालीपन. द पासिंग ऑफ टाइम ब्राउट अ सेंस ऑफ एम्पटीनेस. वक्त का गुजरना एक खालीपन सा लेकर आता है, आया. डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्टी, मुश्किल. ही कुड इमेजिन द डिफ़िकल्टी इन सपोर्टिंग अ फैमिली ऑफ 3 ऑन द फिगर. यानी कि 3 लोगों की फैमिली को आप जब सपोर्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है. यानी आप उस मुश्किल का अंदाज़ा कर सकते हैं जो ऐसे में हो सकती है. जनरस, जनरॉसिटी. आई थैंक्ड हिम फॉर हिज जनरॉसिटी. मैंने उसकी सखावत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. रेजोल्यूट, रेजोल्यूशन. हैव यू मेड न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन. क्या आपने नए साल के कुछ अज़्म किए हैं. सफ़र, सफरिंग. ही इज़न्ट सफरिंग नाउ. अब वो सफ़र नहीं कर रहे, यानी अब वो मुश्किल से 2-4 नहीं है. नाउ आर्टिकल. इन इंग्लिश देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. यहाँ पर 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स और नाउन इक्विवेलेंट्स एंड आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. आर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं या नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं. एंड दे आर नॉट अ सेपरेट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, दे आर सिंपली एडजेक्टिव्स.
Now, definite article, the definite article the or the is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader. यानी जब आपको पता हो कि कौन से नाउन की बात की जा रही है, नंबर 1 एंड नंबर 2 स्पेसिफिक नाउन की भी बात हो सकती है. The definite article can be used with singular, plural और uncountable nouns. इनके इस्तेमाल इन तीनों के साथ होते हैं, यानी जिनको ना गिना जा सके, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों. After the long day, the cup of tea tasted particularly good. एक लंबे दिन के बाद चाय के एक कप ने बहुत ज़्यादा मज़ा दिया, यानी ख़ास तौर पे मज़ा दिया. तो ये ख़ास दिन की बात हो रही है. By using the article the, we have shown that it was one specific day that was long and one specific cup of tea that tasted good. यानी एक ख़ास चाय का कप और एक ख़ास दिन. Indefinite article. The indefinite article a and an is used before a noun that is general. आम नाउन के से पहले इस्तेमाल होता है. And when its identity is not known, और जब हमें ना पता हो कि नाउन कौन सा है. It indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. यानी किसी आम आइडिया के बारे में बात की जाती है, कोई ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती. इनके यूजेस क्या हैं? ए को इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हो. बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. और एन का इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन से पहले, लेकिन एन जो है वो एक ऐसे वर्ड के साथ लगाते हैं जिसका बिगिनिंग साउंड वाउल साउंड होता है. एग्जाम्पल से, शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी, शी इज अ यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर. और एन का इस्तेमाल होगा, आई एम गोइंग टू ब्रिंग एन एप्पल पाई, माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट वुमन. अब है तो एज, लेकिन एज यहाँ पर साइलेंट है, ओ का साउंड है, यानी वॉल्स साउंड आ रहा है यहाँ पे. सो put articles where required. Trees are grown on either sides of the canal. Her courage and patience is exemplary. Kindness and tolerance are noble deeds. The higher you go, the cooler it is. He is the tallest in his class. अब ये देख सकते हैं कि जितने भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल हुआ है उनके ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है. The dog is a faithful animal. The Indus is the largest river in Pakistan. Mount Everest is the highest peak in the world. Alice is the most intelligent girl in school. Where are the books which I bought a week ago? अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, जिसमें तमाम का कंपैरिजन होता है, then you will use the article the. उसके बगैर आपकी सुपरलेटिव डिग्री इनकम्प्लीट है. Here are some prepositions and there is a kind of preposition of time. And there are on, in and at. On के इस्तेमाल होते हैं days, weekend, date, special holidays, a special part of a day. And here are some examples. Many shops don't open on Sundays. बहुत सारी दुकानें इतवारों को नहीं खुलती. What did you do on the weekend? आप वीकेंड पे क्या कर रहे हैं? आपने वीकेंड पे क्या किया? On the 20th of August, 20 अगस्त को, on इकबाल डे, on my birthday, on the morning of October the 11th. तो ये स्पेशल पार्ट ऑफ द डे है. सो इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मंथ, सीजन्स, ईयर्स, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून पीरियड ऑफ टाइम. I visited Italy in July, in spring in 1994. In the evening I like to relax. This is the first cigarette I have had in 3 years. अब ये सारे जो अगर आप इनको फिंगर टिप्स पे रख लें तो आप कभी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल गलत नहीं करेंगे. At night, weekend used to show an exact or a particular time. Celebration, fixed phrases. इन सब के लिए आप at का इस्तेमाल करते हैं. It gets cold at night. What did you do at the weekend? There's a meeting at 2:30 this afternoon at lunchtime. At Eid at the same time.
Now identify the prepositions in paragraph number 3 and 4 of the lesson, and here are the prepositions of paragraph number 3: for, to, in, of, by, towards, at, with. पैराग्राफ नंबर 4 ऑन, ऑफ, इन, फॉर, एट, ऑल. आप यहाँ से देखने की बजाय अगर आप खुद भी करना चाहें तो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Filling the blanks with suitable prepositions given below each sentence. The Rasul sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina in 622 AD. Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began knocking at the door violently. At this, she ran to a corner of the home. She has resolute faith in Allah Almighty. She gave away all the money to the poor and the needy. Her life would always be a beacon of light for all of us. Now, filling the blanks with prepositions of time. Ali is arriving on January 26th at 2 o'clock. Saqib is leaving on Friday at noon. Ashar worked for his firm in 1995. I met Shaheen at 9 a.m. The doctor will see Elise in the evening. Subia has her birthday on September 11. We will have vacation in summer. So, punctuate the following cues in capital letter, comma and full stop, and we have learnt about them. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Rasulullah Ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. On their way to Medina, they sought temporary refuge in the cave of Taw. Acha, you have to capitalize the first letter of every proper noun, and at the end of the sentence you will put a full stop, and after the abbreviation like A full stop, D full stop. Okay. So dear students, that was the end of our exercise. I hope you have learned this exercise very well. I will advise you that please do more and more practice at home. Practice makes a man perfect. अगर आप practice नहीं करेंगे तो ये सब कुछ समझने का, सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. So I'll close my lecture with the hadith. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मारूफिन सदक़ात, हर नेकी सदका है. यानी अगर आप किसी को पानी के गिलास भी पिला देते हैं तो वो भी सदका है. तो छोटे से छोटे अमल को ज़ाया मत होने दीजिए. इसी के साथ इजाज़त दीजिए. टेक केयर. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.